मेरी बहुत अजीज स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर, नॉट ओनली अ फाइटर बट अ वॉरियर. व्हेन आई से वॉरियर, आई यूज दिस टर्म वेरी 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 क्लियरली बिकॉज सब लोग कभी ना कभी जंग में ऊपर नीचे गिरते हैं, हारते हैं. ताकतवर वो इंसान होता है जो वापस खड़ा होकर लड़े, और इस बच्ची को मैंने पूरे सफर में वापस खड़ा होकर लड़ते हुए देखा है. तो वेलकम जानवी, वेलकम टू मेगा जीके. कैसे हैं आप, पहले ये बताएं. As of now, I'm feeling extremely happy because I was not really expecting a single digit rank. And जब आया तो मतलब मैंने कल ही आपको कॉल किया था and I cried on the call that I don't think that मेरा अच्छा रैंक आएगा. And when it came, it was a surreal moment because all of the 2 years of hard work that I had put into this, it was amazing. I have been through each and every phase of that hard work, and that is what I am proud of कि मैंने इतनी अच्छी स्टूडेंट को पढ़ाया. तो सबसे पहले जानवी शुरू करते हैं कि why do you chose law as a profession. आपको वकील बनना ही क्यों है, क्यों, क्या सोचा था आपने? Well, the thing is that okay, I always had an admiration for lawyers, how they talk, how they how they have great public speaking skills, and basically what I think is that law is the foundation of society. Our entire world depends upon it, and knowing law gives you so much power to influence and change the world. And there are so many people in this world who don't understand the complex legal terms, or law is a very complicated subject, and I think that I really want to make it easier for people to understand. And yeah, that was my inspiration for doing law. बहुत सुंदर जानवी, बहुत सुंदर. एंड वी डू इंडीड रिक्वायर पीपल लाइक यू. वी इंडीड, टॉपर हर साल आते हैं बेटा, टॉपर हर साल आते हैं. एंड बट वो टॉपर पहुंचने के बाद, शिखर पे पहुंचने के बाद, वहां से इंपॉर्टेंट काम कौन करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. एंड आई डू बिलीव इन यू कि डाउन द लाइन 10 साल तुम बहुत अच्छा करने वाली हो. डाउन द लाइन 20 साल तुम बहुत अच्छा करने वाली हो. Thank you so much, sir. पक्का, मुझे तुम सब लोगों पे बहुत भरोसा है. सो नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिकली नेक्स्ट एक आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं जानवी. जानवी के मुंह से सुनते हैं कि कैसी जानवी की जर्नी रही क्लेट की शुरुआत से लेके और ऑल इंडिया रैंक 8 तक, क्या जर्नी रही? तो अभी मैं like I had given CLAT in 2021 as well. तब मैंने I guess बहुत प्रिपेयर किया था, especially in the last 2-3 months, but the preparation was not on point. There were many things missing in my preparation. And what had happened in CLAT 2021 was that my invigilator wasted 20 minutes. Like they gave us the paper 5 minutes late, and then उसके बाद they just started shouting कि पेपर के ऊपर कुछ लिखो मत, मार्क मत करो, passages में you are not supposed to mark. And उसमें बहुत ज़्यादा fiasco हुआ था. And I believe I panicked in the paper after this happened. And फिर मेरा ऐसे I got a score of 81 and rank was 1211 in 2021. And I was extremely depressed after that. I mean, I know so many people who are telling me that I'm very depressed right now. I totally relate with you guys because मेरा जब ऐसे हुआ था, you see that इन्विजिलेटर वाला थिंग इवन दिस ईयर हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको ओएमआर टाइम पे नहीं भरने का ये दिया. टू पीएम के बाद उनको सब डिटेल्स भरने के लिए बोले थे, विच इज वेरी बैड. बट द थिंग इज कि मैं इतना डिप्रेस हुई थी बिकॉज आई यूज टू थिंक कि मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है. बट देन आई सॉ द टॉपर्स इंटरव्यू and then I heard कि Manhar Bansal finished his paper in 1 hour 50 minutes, and I was like, wait, I was not at all capable like him. And that was a realization. It was a bitter realization, but the accepting the fact that there were a few mistakes from my side helped me start preparing for 1st August itself. So I 23rd July को क्लैट हो गया था, and I believe मैं 1st August से preparation फिर से start कर दिया था. And I really want to tell the people who have not made it this year that it is totally okay to feel bad. एक हफ्ते का ब्रेक ले लो क्लैट से, डू नॉट टॉक टू पीपल, गिव टाइम टू योरसेल्फ. बिकॉज मुझे जब ये हुआ था लास्ट ईयर, आई वाज नॉट एबल टू स्लीप. मुझे क्लैट के नाइटमेयर्स आते थे, तो मैं एंटी डिप्रेसेंट लेती थी, मेरा एपेटाइट चला गया था, मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी, मेरा वजन कम हो गया. And I had shut myself out of the world. I was just like, nobody talk to me. I'm just gonna stay in my bed and I'm gonna cry. So whatever you're feeling right now, it is valid. Just give it some time. Give yourself some time.
थोड़ा देर शांति से क्लैट के अलावा कुछ चीज़ों के बारे में सोचो. यू हैव अ लाइफ एंड नाउ दिसंबर में क्लैट है, सो आई विल हाईली रिकमेंड पीपल टू गिव इट अगेन. तो थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अच्छे से खाना खाओ एंड देन जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि आपकी क्या गलतियाँ हुई. बिकॉज दिस टिप हेल्प मी अ लॉट. मैंने ये इंट्रोस्पेक्शन किया, मैंने अपने दोस्त जो भी एनालिस्ट में आयुष माथुर, उसके साथ मैंने बात की एंड वी वर लाइक कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी एंड वी हैड रिटन 30 मिस्टेक्स एंड उसमें माइन्यूट मिस्टेक्स थी, लाइक आर्ग्यूइंग विथ रैंडम पीपल ऑन सोशल मीडिया. Like from not giving mocks on time, not analyzing mocks well, to arguing with random people on social media, ये सब हमने डिटेल बनाया था and that's how my journey started. But it was not a smooth sailing. First I remember in September I was giving mocks and मेरे 44 आए, 40s में आए थे लगातार 3 mocks में. And I was so depressed at that time. I used to think that okay, I was not preparing GK at that time because I thought कि GK बाद अक्टूबर से करेंगे. But I used to think that I'm a dropper. I'm an improver. I know everything. I have given the paper and yet I'm scoring in 40. I'm scoring like score like 44, 45. And then मैंने मानव सर को पूछा था कि सर I regret taking a drop. I don't think that I'll make it this year. And sir said कि जब एक बार आप पटाखा लगाते हो, so you don't go back to it. आप बस उसे छोड़ देते हो. इफ इट बर्स्ट ओके फाइन, अगर नहीं होता एटलीस्ट टू गिव योरसेल्फ वन चांस अगेन. सो गिव योरसेल्फ वन चांस अगेन एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय क्लैट जर्नी. एंड एक्चुअली इन बिगिनिंग में मैं मानव सर के क्लासेस इतने सीरियसली अटेंड नहीं करती थी. मैं सो जाती थी क्लास में एंड मुझे मेरे दोस्त कॉल करते थे तो फिर से सो गई क्या, उठ जा. एंड तो बट अक्टूबर से मैंने उनके नोट्स बहुत सीरियसली करना चालू किया. एंड एक्चुअली मेरे जर्नी में एनीमे का भी बहुत मुझे सपोर्ट मिला था बिकॉज डीमन स्लेयर वाज माय फर्स्ट एनीमे एंड वो मैंने तब देखी थी व्हेन आई वाज वेरी डिप्रेस्ड. एंड उसमें एक लाइन थी कि इट इज ओके टू क्राई, इट इज ओके टू फील डिसहार्टेंड, बट इट इज नॉट एट ऑल ओके टू गिव अप. एंड दैट लाइन इंस्पायर्ड मी अ लॉट. Okay, and even like in October I watched Black Clover and I don't know what happened. It did something to my mind. And before that I was getting 66, 65, and after that I don't know what happened. Whoosh, 107. And this was the beginning of my class journey. And I really wanted to tell this to all of those who have not done well because I know like we all are gonna be happy कि हमारा हो गया, but I really know how it feels like when you don't make it. And when you have put in your hard work, so just accept your mistakes and try to rectify them. What is really required in an exam like CLAT is that you have to be willing to accept your mistakes, understand them, and then willing to take efforts to rectify them because it's an aptitude based quiz. That's it. सो ये जर्नी पहुंची अक्टूबर और नवंबर तक, और नवंबर से लेके इस जून तक की जर्नी और बतानी है आपको. वो काफी अच्छी रही थी. तो नवंबर 13 को आपके क्लास में टेस्ट हुआ था एंड मेरे पहली बार स्ट्रीक हुए थे एंड तब मैंने पहली बार ढंग से वीडियो ऑन करके सर से बात की थी एंड दैट वाज द डे व्हेन सर डिस्कवर्ड मी. एंड देन उसके बाद मुझे मेहुल शर्मा का टेक्स्ट आया and we started talking a lot. हमारी vibe and energy एक दूसरे से एकदम मैच कर गई. We both are like hyper excited, super से excitement वाले people, and we used to talk a lot after that. And then I started talking to Anushka Dhanke, who is all India rank 32, my best friend, top Maharashtra state board with 96%. उसका हिंदुस्तान टाइम्स में नाम भी आया था. और ऊर्जा मर्चेंट एज वेल. एंड मैं हम सब इंडिविजुअली एक दूसरे से बात करते रहते थे एंड आपके क्लास में हम बहुत टेक्सटिंग करते थे क्लास चालू. मुझे पता है. इसीलिए मैं कहता था हाथ ऊपर करके पढ़ो, इसीलिए मुझे पता है. बट द पॉइंट इज मैंने कभी उस चीज को गलत क्यों नहीं समझा, बिकॉज द पॉइंट इज कि मुझे पता था कि हर इंसान को अपनी जर्नी में एक दोस्त की जरूरत होती है. yes, exactly. और हमारी क्लास के अंदर कल्चर ही वो था कि तुम चारों लोग मेगा जीके पे मिले. हाँ, मेगा जीके पे. तुम लोग एक दूसरे को पहले कभी नहीं जानते थे. नहीं, है ना, कोई आसपास भी नहीं जानता था एक दूसरे को. नहीं, हम दूर रहते सब. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले. ऑनलाइन कभी एक दूसरे से सामने नहीं मिले आज तक. नहीं. और उसके बावजूद ऊर्जा से मिले, है ना. हाँ. वो भी पेपर देने वाले दिन, उससे पहले तो हाँ, कभी नहीं. और उसके बावजूद भी आज तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो. बहुत अच्छे दोस्त हो. एंड दिस इज बिकॉज
दिस इज बिकॉज दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वॉट आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज अपन वही बात करते हैं ना जानवी हमेशा कि अच्छा करेक्टर और अच्छे दोस्त, ये दो ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे. Yes, true, And sir. I am so Very proud true. of you. I am so proud of you for making very good friends. Very So ये much. हुआ नवंबर से दिसंबर, हाँ, नवंबर में. और अब मैंने आई रियली वांट टू पॉइंट दिस आउट, मैं मेगा जी के में पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं आती थी, बिकॉज पीपल यूज्ड टू आस्क मी तुमने मेगा जी के ज्वाइन किया है, उधर क्लासेस क्यों होती है. आई क्लासेस होती है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड बट द मेन पॉइंट इज मुझे सोशलाइजेशन करने का मौका मिलता है, मुझे सर से बात करने का मौका मिलता है, एंड आई गेट अ चांस टू सी माई फ्रेंड्स बिकॉज वी ऑल यूज्ड टू टर्न ऑन आवर कैमराज एंड देन वी ऑल यूज्ड टू लाफ एंड क्रैक जोक्स इन बिटवीन. So this socialization factor was a big one because I have been living in my house since the last 1 year. मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती थी. I don't really have many friends ऐसे बाहर के. तो I really liked that part about मेगा जी के. So क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप केवल पढ़ाई करने के लिए नहीं आती थी या पढ़ाई करने के लिए ही नहीं आती थी? नहीं, केवल पढ़ाई करने के लिए नहीं आती थी. थैंक यू वेरी मच, वरना बाकी सारे बच्चे समझेंगे कि मानव सर पढ़ाते ही नहीं. नहीं, that is very wrong. That is very wrong. Actually हमारे पेपर में जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का आया था ड्रोन वाला क्वेश्चन, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी थी. आपने इतनी बार चिल्ला के बोला था डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म याद रखो. थैंक यू, वरना बाकी सारे बच्चे कहेंगे अच्छा मानव सर के तो पढ़ाते नहीं, बस घूमने आते हैं. तो हम लोग पढ़ाते हैं. दिस इज नॉट द केस. हाँ, हम पढ़ाते हैं, बट हम ऐसे पढ़ाते हैं कि आप लोगों को कभी इस बात का अंदाजा ही ना हो कि आप पढ़ रहे हो. हाँ, like it हम feels इतना like a social gathering. हाँ, हम ऐसे पढ़ाएंगे कि कभी किसी को और पढ़ाई होती क्या है. सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल भी तकरीबन हर कोचिंग के पोस्टर में आपका फोटो है तकरीबन. आई विल नॉट नेम इट, एंड मैं उसके लिए कुछ पूछ नहीं रहा. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम अगर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो what मेगा जी के and what me and what this community contributed to your success? तो उसके पहले का रीजन मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आई रियली वांटेड माय फर्स्ट इंटरव्यू टू बी विथ मानव सर, तो इसीलिए मैंने सारे इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिए. तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मानव सर के साथ होने वाला था. दैट इज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई गिव टू हिम. एंड सर द यूएसपी ऑफ मेगा जी के इज लाइक मेरा अभी कोचिंग में लगा है. आई एग्री, आई हैड बॉट ए टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, बट the personal attention that you have given to me and everyone from Mega Jeet, it's not just like कि आपने हमें like notes दे दिए, ठीक है ये पढ़ो आ जाएगा. It is much more than that. आप कम्युनिटी मॉक्स लेते थे, उसमें आपने हमारी 1 hour 50 minutes में मॉक्स की प्रैक्टिस करवा के ली थी. एंड इफ यू डोंट बिलीव, मेरा फ्लैट में भी 5 minutes पहले पेपर हो गया था. लाइक आई वाज लाइक ओके, इतना अटेम्प्ट कर लिया, दैट्स गुड. एंड इट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज राइट नाउ मैंने बहुत लोगों को देखा अभी जिनका पेपर टाइम में नहीं कंप्लीट हुआ. सो 1 hour 50 minutes थिंग, एंड देन यू यूज्ड टू सिट विद अस इन द मॉक्स. लाइक 2 hour के मॉक में सर यूज्ड टू पे अटेंशन टू ऑल ऑफ अस कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं. जैसे ऊर्जा अपना पेन बहुत ऐसे हिलाती थी एंड मैं अपनी नेक बहुत नीचे करती रहती थी. सर इतना ज़्यादा अटेंशन देते हैं पर्सनल, एंड पर्सनल अटेंशन के अलावा भी मैंने सर को बहुत कॉल करके परेशान किया है. It is very personal and you don't get this kind of attention anywhere else. This is what I feel. थैंक यू वेरी मच. और आई बिलीव जब मैं फिजिकली बच्चों को पढ़ाता था कोविड से पहले, तब से मुझे ये समझ में आया था कि अगर मैं बच्चों को मॉक देना नहीं सिखाऊंगा तो उनकी सारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है. Exactly, और because syllabus तो सब कवर कराते हैं. Nobody teaches you how to attempt the paper, and that is very important. एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप ऊर्जा सब लोग मुझसे कहते थे सर 1 hour 50 minute में नहीं हो पा रहा है सर, 1 hour 50 minute में नहीं देंगे. तो मैं धीरे धीरे करके 55 मिनट पे लाया, फिर मैं 50 मिनट पे लाया. पर मुझको वो लेके आना था क्योंकि दिस इज हाउ द एग्जाम गोज ऑन. अपने स्टूडेंट को टफ टेम्परेचर और टफ प्रेशर के अंदर रखना पड़ता है, तब जाके वो निकल के आता है बहुत अच्छा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेटा, हर बच्चे की कोई ना कोई वीकनेस रहती है प्रिपरेशन में, कोई ना कोई वीकनेस रहती है, चाहे वो एजुकेशनल वीकनेस हो, चाहे वो इमोशनल वीकनेस हो, कोई ना कोई वीकनेस होती है. सो हाउ डिड यू मैनेज्ड योर वीकनेस और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? So my biggest weakness was maths. क्लैट 2021 में मैथ्स में इवन तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था, बट मैथ्स में मैंने अराउंड 3 क्वेश्चंस किए थे. एक क्वेश्चन उन्होंने कैंसिल कर दिया, एक गलत हुआ, तो आई गॉट 0.75 इन मैथ्स. एंड मुझे ये मेरा माय मिस्टेक में सबसे पहला पॉइंट यही था, क्यूटी. मैंने लास्ट ईयर भी क्यूटी किया था, बट द
but the CLAT pattern, which is very heavily oriented on percentage, ratio, proportion, etc., it requires you to really be fast at calculations. वो मेरा नहीं था, मैं मैथ्स में बहुत बेकार थी. And I remember sir used to tell us so many times in October and November कि मैथ्स कर लो भाई, मैथ्स कर लो, मैथ्स से ही पेपर बनता है, खराब होता है. तो मैंने दिसंबर में, I mean it will sound kind of weird I guess, but मैं दिसंबर में रोज 7 घंटे मैथ्स ही पढ़ती थी. It doesn't sound weird. It sound this is what it takes बेटा. This is what it takes. Yeah, आपको याद है ना, हम लोग कहते थे कि आप लोगों को वो लगाना पड़ेगा, आप लोगों को स्प्रिंट लगानी पड़ेगी, हाँ. 7 आवर्स की, एंड वो बहुत जरूरी था. और अब कितने नंबर आए जानवी मैथ्स में? 10.75. क्या बात है जानवी. दिस इज अ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो भी ये वीडियो देखने वाले हैं. मैं जीके का फैकल्टी हूँ और लीगल करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, बट मैथ्स के बिना पेपर नहीं निकलेगा. And याद रखना, अगर अच्छी रैंक चाहिए तो. यूएसपी ऑफ मेगा जीके के सर हमारा मैथ्स भी लेते थे. सर हमारा हर क्लास के बाद मैथ्स के कैलकुलेशन लेते थे, एंड दैट टू वी हैड टू डू देम विदाउट यूजिंग आवर हैंड, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. So we had to like sit with the hands like that, and sir used to ask us questions and we had to answer them quickly, and that helped me a lot. हाँ, वो मुझे बहुत याद है, मुझे बहुत अच्छी से तुम लोग ऐसे अभी क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या जवाब होगा, इसका क्या होगा, और मुझको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था. तो हर स्टूडेंट की हर क्षेत्र में मदद करनी होती है, तब जाके वो कुछ अच्छा करता है. वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस. अनदर ऑफ माय वीकनेस वाज लीगल रीजनिंग. तो लीगल रीजनिंग मुझे क्लैट 2021 में इतना अच्छा नहीं गया था. मेरे तो 4 पैसेजेस छूट गए थे, तो मुझे इतना अच्छा नहीं गया था. एंड इवन पहले से मेरा लीगल वीक सेक्शन रहा, बिकॉज मेरा 10th तक एजुकेशन मराठी मीडियम स्कूल में हुआ था. तो आई एम फ्रॉम अ वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल 10th तक. एंड so I started learning English very seriously in 7th standard, and उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा नॉवल पढ़ना वगैरह चालू किया. And 11th में I did face a problem when I came to CLAT, because CLAT requires you to have an excellent vocabulary. And 11th में I had worked very hard on my vocab, I remember, because I did not used to comprehend the passages, because I did not have that English base that everyone else has, right? And so legal was, because the understanding the jargon, I remember there used to be mocks जब मैं बोर हो जाती थी लीगल सॉल्व करके, एंड मैं लीगल सॉल्व ही नहीं करती थी. आई यूज्ड टू गेट लाइक 88 वगैरह. दैट वाज इन 11th स्टैंडर्ड. तो मैं बहुत पहले की बात है. एंड लीगल स्टिल वाज, आई वाज नेवर श्योर अबाउट माय लीगल, बट मेरा क्लैट में सीक्वेंस भी ऐसा था कि मैंने लीगल को पहले रखा था, बिकॉज इफ आई कीप लीगल एट द एंड और बीच में, तो बीच में हमारा माइंड थोड़ा सा थक जाता है. तो इसीलिए मैंने लीगल को पहले रखा था, विच इज लाइक नॉट एवरीवन एल्स डज, कीपिंग योर वीकनेस इन द बिगिनिंग. I had done that, and Anushka was like, don't keep it like कि अरे यार मेरा होगा कि नहीं होगा. Anushka told me that look at it from the perspective that you won't be able to do justice to that section if you keep it in the end or something. क्या बात है. Yeah, Anushka is like the most rational person in my life. क्या बात. लीगल मैंने स्टार्ट किया, एंड इवन बिगिनिंग में मेरा लीगल क्लैट में मेरे फर्स्ट पैसेज था जो सेक्युलर, वो आई गेस टैक्सेशन वाला, उसमें मेरे 7 मिनट लग गया, एंड माय लिमिट इज 4 मिनट पर पैसेज. एंड तब मैं थोड़ा सा लाइक शिट 7 मिनट हो गया, मैंने देखा ही नहीं टाइमर. एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि सर ने हमें फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी की 10 माइल्स की रेस दिखाई थी. उसका दरवाजा खुला रहता है फर्स्ट लैप में, एंड फिर वो सेकेंड लैप में रीगेन करता है. तो मैंने इतना ज्यादा स्पीड पकड़ लिया उसके बाद that I finished 20 questions in 15 minutes. I was like, yes, now I got it together. एंड हम लोग कितनी बार वो एक क्लिप देखे हैं जानवी, जिसमें मैं हर बार तुमको बताता था कि तुम कितना भी प्रिपेयर होके जाओ, देयर विल बी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, बट यू वोंट गो रॉन्ग. आई वोंट गो रॉन्ग. ये बहुत, आई एम सो प्राउड. मुझको तुम्हारी, भारती की, ऊर्जा की, सब लोगों ने पेपर के बाद ये अपना रिएक्शन बताया कि सर आपकी आवाज आ रही थी हमको पेपर के अंदर, आपकी आवाज आ रही थी हमको पेपर में कि जल्दी करो, जल्दी, स्लो नहीं चलना, जल्दी करो. yes, तो yes. आपको भी हमारी आवाज आ रही थी. मैंने बोला ना, मुझे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ये सर ने पढ़ाया था. And even there were so many questions in GK and even math में मैंने दो तुक्के मारे थे मैंने मैथ में. I was not sure about the answer, but मार्क करना है. सर ने हमें चिल्ला के बताया था कि 140 से मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने if the paper is moderate to easy. 145 से ज्यादा करने हैं, बट मेरे 144 किए, बट क्योंकि जीके काफी बेकार आया था. बट जीके में भी I was taking many risk, और वो सब सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया था कि जीके में तुक्के कैसे मारने हैं.
not तुक्के, intelligent guesses, like you eliminate two If you options. can eliminate two options, go for it. Go for it. Go for it. Go for And it. because I used to be very skeptical of attempting so many questions before. Actually मैंने क्लैट में I guess highest attempt किए मेरे सब mocks में. Oh, is it? Is it? Yeah, it is. ओके, वाओ वाओ वाओ, ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है अपने करियर में, और ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है जो जो जितना टफ टाइम होता है वो उतना शाइन करते हैं, जितना टफ टाइम होता है वो उतना शाइन करते And हैं। there were वाह, so many things other than GK that you taught us, like how to stay calm during the paper. Because मेरे last year एक गलती की थी that I want to tell everyone, that I studied till the moment of the paper. So मैं कार से सेंटर में जा रही थी, I was studying in the laptop in the moving car. तो मतलब वो थोड़ा चक्कर आने लगता है, एंड मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, पेपर के एक दिन पहले भी रात तक बहुत पढ़ा था। एंड ये सर सिंस आई हैड दिस आई इंजुरी थिंग, इससे मैंने लास्ट वीक कुछ ज्यादा पढ़ाई की नहीं। एंड पेपर के दिन भी आई गिव अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ लीगल, एंड तब मेरा विजन ब्लरी हो गया, एंड I had a headache and मुझे चक्कर आने लगा, and I was so scared कि what if क्लैट में ऐसा हो जाए। Like I was telling to my कि भाई तू क्लैट तक चल जा, फिर बाद में जो होना है हो जाए। एंड देन आई रिमेम्बर लाइक सर ने बताया था कि पेपर के दिन एकदम चिल रहना है, तो मैंने खाना खाया एंड आई स्लेप्ट। एंड इवन देन आई वेंट टू द सेंटर, उसके पास में मैकडोनल्ड्स था, तो मैंने उधर जाके सर को कॉल किया, सर मुझे बर्गर खा, मैक पिज्जा खा एंड उधर सो जाए, एंड आई डिड दैट, आई एट अ मैक वेजी बर्गर एंड आई स्लेप्ट। और पूरा 1 घंटा सो के उठी है। शी कॉल मी एट 12:30, आई टोल्ड हर कि कितने दूर है सेशन, तो शी सेड कि सर यहाँ से 5 मिनट है। मैंने कि सो जा, सो जा। कह रही सर सो जाऊँ, मैंने कि पक्का सो जा। कह रही सर पक्का सो जा, मैंने कि पक्का सो जा बेटा, And in पक्का। the morning, he had sent 73 pages के notes, and I did not get time to read that. And I was like, sir, I did not read those notes. मैं like कुछ नहीं, मैंने ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए भेजी थी, मुझे कुछ काम नहीं था, मैंने ऐसे भेज दिए। अभी अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जंग ना केवल पढ़ाई से नहीं जीती जाती। Not at all. आप कभी नहीं जीत सकते, आप कितना भी पढ़ लो, है ना, यू कैन नॉट विन दिस फाइट और एनी फाइट ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट माय सेकंड, नहीं, I have, so sorry, I have. For sure. And legal used to be my weakness, and I was never really able to finish legal reasoning in 35 minutes. So I used to ask sir a lot, and he taught us like not to read the entire passage, and he used to tell us to do something called as sprints. So for 2-3 days, you will just do legal reasoning, and you will solve as many passages as you can, and then आपका timing, and it worked for me. मेरा timing ठीक हो गया उसके बाद, but फिर भी क्लैट में मेरा 34 minutes में हुआ, which was like very big for me. कि 35 minutes was like क्या बात है। और हमें याद है हम कितनी बार बात करते थे कि सर लीगल जल्दी नहीं हो पा रहा है। हाँ। पेपर से 2 हफ्ते पहले भी पहले बात करते थे, सर लीगल जल्दी नहीं हो पा रहा है, क्या करें। यू रिमेम्बर? Exactly. हाँ। And उसके बाद like there was an emotional कैसे थे, कुछ mental illness टाइप था, mental weakness टाइप था कि अगर पेपर बहुत इजी आए तो I used to get bored, पहले ये था। एंड मैं मॉक्स में सो जाती थी, मैंने अभी मैं 11th में बहुत करती थी, अभी मैं सिर्फ 2 मॉक्स में सो गई। बट मैंने सर से बोला, एंड सर ने मुझे बहुत समझाया ये बारे में। एंड उसके बाद एक टाइम ऐसा हुआ कि देयर वाज अ मॉक एंड इट वाज वेरी इजी, आई सॉल्व लीगल एंड आई वाज लाइक शिट, ये तो कितना इजी है। एंड देन आई वाज लाइक ओ नो, अब सबके अच्छे आएंगे, परसेंटाइल में बहुत रेस होगा। एंड आई पैनिक सो मच आफ्टर लीगल, इवन दो इट वेंट वेरी वेल। तो मेरे वो पैनिक की वजह से पेपर थोड़ा खराब हो गया। आई डिड नॉट परफॉर्म एज वेल एज आई कुड हैव। तो मैंने सर को ये बोला, सो वी प्रिपेयर्ड दिस स्टार्ट, आई वाज लाइक no matter how difficult or tough the paper is, if it is easy, it is easy for everyone. If it is tough, it is tough for everyone. So I have to be in this mental zone that I will not like think a lot about like कि paper easy आ रहा है, how is everyone else doing. I'll just focus on my performance. So this was and you get to know this only by writing a lot of mocks and analyzing them properly, and that too sir taught us very well. Very good, very good, very good. My next question is, so these are your weakness. What were your strong points, Janvi? What were your strong points? Yeah, reading comprehension English. Actually, it did not go that well in CLAT, but it was my strength, and I always used to get around 28, 29 in English RC because I really like reading. And I love eclectic reading and like whatever it is, novels, fiction, mostly fiction, but thoda bahut non-fiction bhi. And I used to find the passages very interesting. So even of CR, so even I'm like giving a mock and I'm reading this passage, I'm like, oh my god, this author is so brilliant and this is so brilliantly written. And I used to get very happy. Even during CLAT, I really liked some of the passages, and I was like, whoa, these are like amazing passages. And uske liye I had this thing कि what if CLAT में philosophy आ जाए, तो इसके लिए I had prepared a
background knowledge of philosophy, psychology, thoda science, and I was like, if any it may come from any subject, right? You don't know, but CLAT usually ask editorial like things, but English has been my strength, and I was good at vocab because I had practiced it a lot. And uske liye I suggest something in the end for vocab, especially for those who are from vernacular medium. And English was my strength, and also I think one of my strengths was that I knew what the D-Day was like. I had an experience of what the D-Day is like. तो मुझे वो थोड़ा आई गेस एम्पावरिंग लगता था कि ओके मैंने लास्ट ईयर दिया है, आई नो व्हाट इट इज लाइक. तो दैट वाज समवॉट एम्पावरिंग फॉर मी. क्या बात है, क्या बात, बहुत ही बढ़िया. योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट यू जस्ट सेड वाज इंग्लिश. है एडिट टू इंग्लिश अदर देन सब्जेक्ट, व्हाट वाज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट? Cannot say that about CR. I mean, मुझे CLAT 2021 में it was very easy, so I got around 26 point something in CLAT 2021 का CR. But ये वाले में मेरे mocks में CR में बहुत ज़्यादा points marks vary करते थे. So I think vocab, reading speed, I had a decent reading speed. I had developed a decent reading speed, and I think somewhat GK as well. Even though CLAT 2022 में मेरे GK में 22 point something आया. वो बहुत अच्छे नंबर है. वो बहुत परसेंटाइल में वो बहुत अच्छा नंबर है. Yeah, like I think that some guy, I guess AI3 got 27 and हमारी अनुष्का got 25 in GPA, which is like phenomenal. And there is one more student to whom I just know, मतलब he called me in the morning, he got 26. Wow, that is amazing. हाँ, that is amazing for these people. I think this was tougher than 2021 का GPA. बहुत टफ था, बहुत टफ था. And other than this, if you want to say the name of some people like by 5, 6, 4, 10, whatever you want to say, there is no fixed number. Just name those people जिन लोगों ने आपकी इस जर्नी में हेल्प करी. Yes, this is going to be a long list. Manav sir, first of all, because and this interview is very special for me. I had always dreamed of giving him an interview, and वो कितने मस्त आए jokes. Manav sir बहुत lame jokes मारते हैं, but बहुत हंसी भी आती है उनको. And Manav sir, इसके बाद my brother Prathamesh, he is doing mechanical engineering, but he has helped me so much. Even you know sir, and he has helped me so much. उसने मेरे लिए CLAT का पेपर खुद एक mock attend किया just to see what I go through, and then he used to give me tips, and we used to like since lockdown we have been spending a lot of time together, and he used to uplift me जब मेरे mocks में कम number आते थे. He was very involved in my prep, and even D-Day के पहले D-Day के दिन भी he was there. He was with me at the center motivating me, and he was like, you don't even need any motivational speech because winners don't need that. So he has been a huge part of my prep. Like I love my brother. He's like the best sibling ever, the best sibling anyone could ever ask. Best sibling of the generation. मैं खुद प्रतिमेश को अवार्ड देना चाहूंगा because I know, मतलब I am proud of having a student जिसका भाई इतना supportive है. बहुत supportive. And I basically shout out to all the brothers out there across the nation, across the world. Help your sister like Prathamesh helped her sister. Help your sister. And be with her. Be her support. And see वो कितना अच्छा करेगी फिर. And उसके बाद my mom, she handled my mood swings. She used to get afraid before I was going to write a mock. So like तेरे mock की वजह से मुझे tension आ जाता है. And हाँ, and like उसने मेरे लिए even one day before CLAT, my brother and my mother were not able to sleep properly. इनको इतना टेंशन आ गया था इसका अच्छा जाएगा नहीं जाएगा. And my mom has done really like a lot for me. She has made so many sacrifices for me, and like I really want to thank her for making all these sacrifices. She was very involved in my brain. She knew what were my strengths, what were my weaknesses, मेरा क्या चल रहा है, and like she wholeheartedly supported the decision of taking drop an improvement year. I did not tell a lot of people, बहुत close relatives भी पता था, because यहाँ पे I guess मुंबई में इतना ज़्यादा CLAT popular नहीं है. So it takes around 1 hour to just explain to people like, okay, this is CLAT. इसके लिए I'm not gonna do anything for a year, and I'm just gonna give this test. And now coming to my friends, I have the most precious friends ever. Mehul, my best friend. Mehul, Anushka, Urja. We had this acronym for like abbreviation for our group: Moj, Mehul, Anushka, Urja, Janvi. तो हम सब लोग सुबह 7 बजे like
ग्रुप पे डालते थे कोई पढ़ने आएगा क्या, एंड देन वी यूज्ड टू स्टडी, हम पोमोडोरो लगा के साथ पढ़ते थे, साथ जीके करते थे। जीके इतना मतलब हमने एंड में बहुत सारा ट्राई किया साथ करने का, बट एट द एंड हमारा थोड़ा इंडिविजुअली हो रहा था, तो हमने जीके इंडिविजुअली किया। लाइक क्विजेस वगैरह हमारे लिए इतने वर्क नहीं किए। हमारा ग्रुप था मटेरियल गर्ल्स करके, तो उसमें हम लोग क्विजेस बना के रोज डालते थे, और आपके नोट से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो होगा तो, और उसमें से क्लैट में एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन आए थे जो हमने वाओ क्विजेस बनाए थे। वाओ एंड मेहुल के साथ आई रिमेम्बर मैंने बहुत सारे ऑल नाइटर्स भी पुल आउट किए। लाइक हमने आपका जो जनवरी में टेस्ट था 15 डेज बैच के बाद का डिवीजन वाला, तो उस पर हमने रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साथ में पढ़ाई की है। एंड मैं बहुत बार आई यूज्ड टू डोज ऑफ अ लॉट ऐसे ऐसे करके, नहीं बोलते चुप अभी जा कॉफी पी के आ, उठ जा हाँ, उठ जा पढ़ पढ़ पागल। पढ़ 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 एंड ये बहुत सुंदर है। my friends have done tremendously well in CLAT as well. So I am so proud of my friends. Like if it weren't for him, if it weren't for my friends Mehul, Urja, Anushka, I would not have been where I am today. आई नो And आई नो and उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। I know, and ma'am, I am proud of this culture. I am proud of this Yes. culture. So, so you just basically told about your mom, है ना? Yeah. How she helped you, और मुझे बहुत अच्छे से याद है आपकी मदर से मेरी बात हुई थी जब वो आपने ज्वाइन किया था दिसंबर Yeah. नवंबर में। So she सितंबर में। हाँ सॉरी सितंबर में, तो वी हैड अ वर्ड, शी टोल्ड मी कि जानवी ने ऐसे ऐसे सर अटेम्प्ट दिया है एंड नाउ शी वांट्स टू गिव अगेन, और क्या उसका हो पाएगा। मैंने कहा आंटी हम अपनी जान लगा देंगे। सो एक बार अगर हो सके तो आप अगर अपनी मॉम को बुलाएं। आई हाँ मैम, कैसे हैं आप मैम? हाँ ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ सर। आज जानवी जो भी अभी हुई सक्सेसफुल, आपकी वजह से ही हुई है। थैंक यू वेरी मच मैम। ना मैम, ये केवल मेरी वजह से हो ही नहीं सकता था मैम। मेरे से जो भी पेरेंट्स बात कर रहे हैं, सपोर्ट किया। ड्रॉप लेने का हमारा ये डिसीजन बहुत टफ था, लेकिन आपने उसको बहुत सपोर्ट किया, और आपने उसको जाना, उसका नेचर जाना, उसके अकॉर्डिंग उसको आपने गाइड किया, इसलिए बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं बस एक सवाल पूछना चाहूंगा मैम, टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, क्योंकि जब मैं जॉब में था मैम, और मेरे को अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन था मेरे पेरेंट्स। ही पास्ड अवे इन 2016, तो जब मैंने 2019 में अपनी नौकरी छोड़ रहा था, तो मुझे उनकी सिखाई हुई वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट याद थे, कि वो हमेशा कहते थे मानव, इंपॉर्टेंट टफ पीपल आर दोज हु आर नेवर बाउंड इन एनी स्ट्रक्चर और फ्रेम। वो तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वो डरते नहीं किसी से। सो आप बस मुझे ये बताएं कि जब से जानवी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और हम लोगों को ज्वाइन किया, तब से लेके जब तक उसका पेपर निकला, आपने उसके अंदर क्या क्या बदलाव देखे? बहुत बहुत सारे बदलाव देखे। एक तो उसमें बहुत नर्वस हो जाती थी, पैनिक हो जाती थी, वो उसका कम हो गया, और पॉजिटिव हो गई, बहुत पॉजिटिव हो गई। और आपने जो, और कभी भी आपको कॉल कर सकते, ये सबसे बड़ी आपने ये फैसिलिटी दी है मैम। ये एक टीचर का सबसे पहला फर्ज है। कोई भी क्लासेस ये नहीं देता है कि सर कोई भी अपनी फैकल्टी आप कभी भी उनको कॉल करो, ये कोई भी क्लास में नहीं है अवेलेबल, सिर्फ आपके यहाँ पे ये। थैंक यू वेरी मच मैम। और आई विश, मैं जितने भी पेरेंट्स से आजकल बात कर रहा हूँ, मैं उन सबसे कह रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को देख देख के सीख रहा हूँ, वो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने बच्चे के साथ रहना है, उनको क्या बताना है, सपोर्ट करना है। भाई ये मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे मॉम डैड ने कभी मुझ पे प्रेशर नहीं डाला, मेरे कोई फैमिली मेंबर में नहीं डाला। प्रेशराइज मत करो तो भाई, बिकॉज सोसाइटी में एक ड्रॉप लेना है, फिर जस्ट टेकिंग अ ड्रॉप इज वेरी स्टिग्मेटाइज्ड। आपको लोग ऐसे रिस्पेक्ट, इसीलिए हम उसे इम्प्रूवमेंट कहते हैं पहले दिन से। लाइक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि यार अभी तेरा सेकंड अटेम्प्ट है, अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। दे वर ऑलवेज लाइक तू कर लेगी, एंड व्हाटएवर यू डू विल बी हैप्पी इन दैट। उनपे भरोसा रखिए भाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह वाह जानवी, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जानवी, मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर स्टूडेंट के लिए सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि हर मॉक का स्कोर सेम नहीं रहेगा। हर मॉक का स्कोर कभी सेम नहीं रहेगा। किसी मॉक में स्कोर कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में बहुत कम होगा। कैसे टैकल किया बेटा आपने ये मॉक का स्कोर, और ये बहुत जरूरी आने वाले बच्चों के लिए? आई रिमेम्बर मेरे मॉक्स में बहुत वेरी करते थे, तो एक सर्टेन कोचिंग के मॉक्स में मेरे स्कोर बहुत वेरी करते थे। तो मुझे याद है मेरे एक मॉक में 113 आए, आई वॉज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट मॉक 66, एंड मैंने मेरे टेक्स्ट ड्रॉप किया, आज मेरे 66 आए। मेरे पहली बार इतने कम आए थे 60s में, एंड फिर मैं ऑफलाइन चली गई। उसने मुझे तुरंत कॉल किया, एंड मैं कॉल पर रोई थोड़ा। बट दिस इज नॉट अ हेल्दी वे टू कोप विद योर मॉक्स। डोंट टेक देम टू, आप इतना दिल पे मत लो मॉक्स को, बिकॉज दे आर गोइंग टू वेरी अ लॉट।
मेरा आप अगर ग्राफ देखोगे मॉक स्कोर्स का, आई टेल यू 113, 66, 100.5 or something, again 80, 105, again 70. It used to be like a roller coaster in one coaching के mocks. बाकी the other coaching it was very constant. And how to deal with bad mocks is, firstly you cannot blame the mock. Don't do that. That is the number one mistake. कि यार मॉक ही टफ था क्या बात इसलिए है, मेरे बहुत नहीं हुआ। ये मैं भी बहुत करती थी। डोंट डू दैट। फर्स्टली थोड़ा ब्रेक ले लो, पानी वगैरह पियो, कुछ भी करो, एंड उसके बाद जस्ट सिट एंड थिंक। डोंट डू एनीथिंग, थिंक कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड देन राइट इट ऑन अ पेपर। एंड आई नो पीपल जो बहुत डिटेल में लिखते थे कि ये क्वेश्चन गलत गया, ये, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट यू कैन डू दैट फॉर एग्जाम लाइक क्लैट की हर एक इंग्लिश का पैसेज अलग ही आने वाला है। For sure, for आप sure. पैटर्न निकाल सकते हो जरूर, बट डोंट हैव टू राइट इतना डिटेल में, बट यू हैव टू राइट द मेजर मिस्टेक दैट यू डिड कि मैंने नॉट नहीं पढ़ा या फिर ये, और देन यू हैव टू मैक्रो एनालाइज द मॉक फर्स्ट कि ओके बड़ा बड़ा क्या गलत गया, देन यू हैव टू डाइव डीपर एंड माइक्रो एनालाइज इट। And there are going to be tough, like there are going to be crap questions in some mocks. आप देखते हो like ये क्या question है, मेरा आंसर सच में सही है। So उसमें I had this modus operandi that I used to ask it on to my friends whom I trusted, and I was like they are smart people. So I used to ask this to my friends. I used to watch some motivational videos या फिर last year toppers के interviews. वेरी गुड, और ये बहुत जरूरी होते हैं इंटरव्यूज। नेक्स्ट थ्री स्टेजेस, आई आस्क 3 स्टेजेस। बिफोर आई एम आस्किंग हर 3 स्टेजेस, मैं आप सब लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपको टफ बनना है तो इतना टफ बनना है जितना अब ये कहानी में बच्ची बताने वाली है। सो अ वीक बिफोर द एग्जाम, अ डे बिफोर द एग्जाम, और ऑन द डे ऑफ एग्जाम, what was the journey and how you tackled it? Was unexpected, and let me tell you my story. So एक मॉक दिया था with an eye patch on, because सर, मेरे सर से बात की। ओके, उस दिन जब मेरे साथ ये हुआ, मैंने सर से बात की कॉल पे और मैं रो रही थी कि सर मेरे साथ ये हुआ है एंड माय डॉक्टर सेज दैट आई वोंट बी एबल टू राइट द पेपर, और सर मेरे से बहुत मेहनत की है। एंड सर बोलते कोई बात नहीं, एक आय तो चल रही है ना, एक आंख चल रही है ना, तो उससे पेपर लिखेंगे। तो फिर मैंने वो आई कैप से एक मॉक लिखा था, उसमें आई गॉट 114 और टेक्स्ट किया था। एंड सर बोलते आई एम सुपर हैप्पी, एंड उसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। एंड थर्सडे को वो रिमूव हो गया, बट इवन थर्सडे तक आई वॉज नॉट रियली एबल टू स्टडी बिकॉज जीके लैपटॉप पे पढ़ते हैं मोस्टली लोग, एंड मेरे आई पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना था। तो बहुत बार मम्मी मुझे नोट्स ऐसे रीड करवाती थी या फिर मैं इसे सुनती थी, आपकी क्लासेस सुनती थी। एंड आपने जो 790 पेजेस के नोट्स भेजे थे एंड में, मैंने बस वही पढ़े। एंड लास्ट का एक वीक मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं की बिकॉज ऑफ दिस। एंड इवन आई हैड दिस मसल स्पाज्म थिंग इन माई नेक, तो मेरे जो वेन है नेक की, तो वो थोड़ा दब गई थी, तो मेरा हेडेक हो जाता था, तो इसीलिए मैंने पूरा क्रेप बैंडेज लगाया था। एंड सर बोलते भाई तू क्लैट तक चल जा बस कैसे भी जाके पेपर दे के आ जा, कैसे भी, फिर तू आराम करियो। और आई बेसिकली रिमेंबर, व्हाट आई वांट टू टेल ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर, आई बेसिकली रिमेंबर 2 थिंग्स जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है जिंदगी में सब बच्चों के लिए। एक, there is you should not and you cannot and you must not fight each and every battle by your own. समस्या आ रही है तो बात करेंगे ना यार। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जानवी ने पहले डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा जानवी संभाल लेंगे बेटा, कोई ना कोई रास्ता होगा। फिर उसने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर उसने फिर फोन किया, फिर उसने मुझसे बोला कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। मैंने कि तू आंख बंद करके मेरी क्लास सुन पाएगी क्या? शी सेड हाँ मैं सुन पाऊंगी। और तब हम लोग रिवीजन बैच चला रहे थे 2 घंटे 2.5 घंटे का, जब हम लोग पूरे लगातार स्पीड से रिवीजन करते हैं। मैंने कहा बस तू सुनती रहे बेटा, तू सुनती रहे। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे मेंटोर्स मुझे सिखाते थे, मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, मैंने इन बच्चों को सिखाया कि जिंदगी एक दिन में बनती और बिगड़ती नहीं है। यू नीड टू डू दैट थिंग एवरी डे। अच्छा काम, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए रोज अच्छा करना पड़ता है, खराब जिंदगी करने के लिए रोज खराब करना पड़ता है। एंड आई रिमेंबर एवरीवन आउट देयर, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने इन लोगों को एक और चीज बताई थी जो आप लोग भी याद रखिएगा कि 15 दिन पहले की बात होगी जानवी, जब मैंने तुझसे कहा था कि अब तू कुछ भी कर ले तो अपना सिलेक्शन रोक नहीं पाएगी। हाँ, 1st of June को, 1st of June की बात है ना, जब मैंने कहा था जानवी अच्छी बात यह है कि तेरा सिलेक्शन होगा, बुरी बात है तो कुछ भी कर ले, और अच्छी बात है तो कुछ भी कर ले तो अपना सिलेक्शन नहीं रोक सकती। सो ऐसे सब कुछ नहीं बदलता, तो मन से मत हारना बस।
तुम मन से ये बच्ची तुम्हारे that सामने is बैठी है. that is so important because मेरी I remember thinking कि okay if I might lose one eye that's okay, मैं blind नहीं होने वाली हूँ. I still read the paper. I don't care. I just want to give the paper. क्या बात है जानवी, And क्या उसके इंस्पिरेशन है बेटा. उसके डी डे पे मैंने जब सेक्शन मैंने अभी बताया सेक्शनल टेस्ट दिया उसमें मेरा विजन ब्लरी हो गया था. मुझे इतनी टेंशन आ गई थी उस दिन की लाइक आई जस्ट वांट माय आई टू वर्क फाइन. एंड अभी मेरा नंबर बढ़ गया है तो अभी मैं मतलब उसकी वजह से नंबर बढ़ गया तो अभी नया चश्मा. एंड चश्मे से हमें याद आया कि हमने कितना क्लियर बोला था हर स्टूडेंट को कि 2 चश्मे लेके जाना. यस मैंने लेके गए. हाँ, एंड वो डी डे से पहले वाले दिन, दैट इज ऑन द 18th ऑफ जून का दिन कैसा रहा और उस दिन सेशन कैसा रहा? ओके तो उस दिन एक्चुअली मैंने एज यूजुअल मैंने आपके 790 पेजेस के नोट्स एक बार फिनिश कर लिए. इट फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट. एंड द थिंग अबाउट सर इज कि सर नोट्स में भी बहुत अपने पर्सनलाइज नोट्स लिखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि यू हैव डन टिल नाउ गुड जॉब दिस इज एन अचीवमेंट बीच बीच में एंड में स्माइल बिकॉज यू डिजर्व इट. आपने नोट्स कंप्लीट किया एंड इट यूज्ड टू मेक मी सो हैप्पी कि सर ऐसे कुछ भी डूडल करते थे नोट्स पे. एंड हाँ और मैंने फिर लास्ट वीक में और फिर जब मैंने अपनी एनिमे फेवरेट एनिमे जुजुत्सु काइसेन देखी थी. इट वाज माय लकी चार्म बिकॉज इवन सुपर 30 के सिलेक्शन के टेस्ट के टाइम मैंने वैक्सीन लिया था तब मुझे जॉन्डिस हुआ था. आई वाज नॉट फीलिंग वेल तो मैंने पूरा दिन बस जुजुत्सु काइसेन ही देखी थी और जाके पेपर देके आई थी नॉर्मली और मेरा हो गया था. तो इसीलिए मैंने वो सीरीज देखी थोड़ी सी. एंड देन सर का सेशन हुआ एंड आई एम टेलिंग यू दिस दैट वाज द बेस्ट सेशन ऑफ माई लाइफ. बेस्ट सेशन एवर. एंड उसमें फालतू का मोटिवेशन नहीं. इट्स नॉट कि यू नो देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब जिसमें उठो काम करो आगे बढ़ो जैसे फालतू चीजें होती है. बट सर का मोटिवेशन वाज लाइक एनीथिंग कैन गो रॉन्ग आई वोंट गो रॉन्ग. एंड वही डी डे के इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग एंड इट वाज सो पर्सनल एंड सो अमेजिंग कि मेरे भाई भी सुन रहा था मेरी मम्मा भी सुन रही थी. एंड आई रिमेंबर मेहुल वाज वेरी इमोशनल इन दैट मीटिंग. इवन आई गॉट वेरी इमोशनल. मैं कल भी आपके जो हमारा सेशन था उसमें मैं रोने लगी थी. दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग पीपल आर. स्ट्रॉन्ग पीपल्स के इमोशन हमेशा बहुत ताकतवर होते हैं बेटा. स्ट्रॉन्ग पीपल्स के इमोशन हमेशा बहुत ताकतवर होते हैं और वो होने चाहिए. दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग पीपल आर. And actually, I had even made a list of D-Day instructions कि पेपर में क्या करना है. If you get stuck in a question, eliminate. Then don't get stuck in a question. छोड़ दो या फिर कर दो. Mostly कर ही दो, छोड़ो मत. हमेशा कर दो, हमेशा कर दो. और हमने उस पर वीडियो बनाई है हमारे चैनल पे, आप जरूर देखिएगा. वही इन लोगों को बताया था एंड दे टुक दोस पॉइंट वेरी सीरियस. और अगर मौका लगे तो सो जाओ. मैं बता रहा हूँ, सो जाओ, दिमाग शांत रहेगा, अच्छा करके आओगे, अच्छा खाओ. Actually, सोना is very important. I think taking good sleep because last year के मेरे first attempt के flat में I slept at around 1 AM and मैं सुबह 6 बजे उठी. मुझे नींद ही नहीं आ रही थी and then मैं पढ़ रही थी पागलों जैसे. Don't do that. Don't do it. बहुत अच्छी नींद लेना. मैं तो I panic called sir the day before CLAT. तो I was like वो 18th of June पे सर मैंने आज सुबह से 6-7 naps ले लिए. तो सर बोलते अच्छा है नींद आ रही है सो जा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. डी डे का दिन खुद को सेंटर में, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस बार नहीं हुए हैं और मुझे बहुत दुख है, तो मुझको बहुत डिटेल में कुछ पॉइंट बता बेटा जो तेरे को वहां कैरी करके लेके गए. मतलब समझ रहे हो ना, पेपर में जब 7 मिनट लगे पहले पैसेज में तो भी खुद को संभाला कैसे बेटा? वो जानवी लड़ती कैसे रही है एंड तक? यस तो मुझे सेंटर में जाके आई डोंट नो हाउ टू पुट इट बट मेरे सेंटर में जाने से पहले मॉम एंड भाई साथ में थे सेंटर में आते वक्त. एंड कार में आई रिमेम्बर कार में हम पहले 15-20 मिनट हम लोग कैब से जा रहे थे तो कैब में हम 15-20 मिनट बहुत शांत थे. एंड मेरा भाई वाज लाइक आर वी सपोज्ड टू बी सीरियस राइट नाउ, क्या हम बात करें? एंड देन आई सेड कि नो लेट्स जस्ट टॉक बिकॉज आई लव टॉकिंग एंड बाय टॉकिंग आई एम इन अ नॉर्मल एलिमेंट. आई एम इन माय एलिमेंट सो I love talking a lot. Okay, I talk a lot. तो इसलिए we were like it was like a normal day. हम कैब में अच्छे से बात कर रहे हैं. We were just discussing things and ऐसे करके and then मैकडोनल्ड में मैंने आपसे बात की. That was very motivating for me. It was like हो जाएगा. And when I went to the center, actually I saw people जिन्होंने एडमिट कार्ड ऐसे क्रिम्पल करके लाया है, आधार कार्ड भी अपना ठीक से नहीं लाया. But like okay, this is a competition. I'll be able to pull it off. And actually the thing was that कि मेरा जो डेस्क था एग्जाम का
वो प्राइमरी स्कूल वाला डेस्क होता है ना, पिंक ब्लू कलर का ऐसे छोटू सा, हाँ, वैसा हाँ। डेस्क था। एंड आई एम एवरेज हाइट, मतलब ठीक है। एंड मेरे लेग्स वहाँ पे पहुंचने नहीं था, मुझे लग भी गई थी पैर को। एंड आई वाज लाइक ओके जाने दो, यू टोल्ड अस राइट कि स्लीपर्स निकालो एंड जैसे बैठना है वैसे बैठ के दे दो। तो मैंने लाइक आई सिट लाइक हाउ यू सिट ऑन द फ्लोर, और वैसे बैठ के मैंने दे दिया पेपर। एंड even क्या before the बात। paper, like I was meditating. I think I was just like controlling my breathing, because controlling your breathing is very important. वो सर ने हमसे exercises करवा के ली थी। And जब पेपर आ गया, I was like, okay, this is my time to shine. This is the time where I get to prove my hard work. एंड And पेपर में डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, सर ने हमसे रटवा के लिया था, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। तो इफ यू कीप थिंकिंग कि मेरा लीगल में 7 मिनट लग गए, शिट अभी कैसे होगा आगे, जस्ट डू इट, just do the question that is right in front of you. Don't think about, oh shit, GK में मेरा ये गलत गया. And I think in that my sequence helped me a lot as well. So I had kept legal 35 minutes, logic 25 minutes, English 25 minutes, GK 8 to 10, but मैंने 12 ले लिए because थोड़े तुक्के वगैरह मारने में टाइम गया. And then math बचा कुछ टाइम. तो math and GK were kind of always dicey for me. कि math में who knows clad गलत question पूछ ले, who knows क्वेश्चन ही गलत हो। एंड जीके में ऑल्सो लास्ट ईयर जीके बहुत वेग आया था, ये साल उससे भी वेग आया था। एंड लास्ट ईयर रिमेम्बर मेरे सेंटर में मेरे क्लास में एक बच्चा था जिसने जीके से पेपर स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड क्राइंग like right after the paper started. So I did not want that to happen to myself. So I was like, I treated all the reading sections as one section. और क्या बात है, या बहुत एंड बढ़िया। उससे मुझे थोड़ा ये हुआ बिकॉज जीके टफ आया, आई वाज लाइक ओह हाँ। दिस इज वेरी टफ, बट आई वाज लाइक ओके मेरे रीडिंग सेक्शन तीनों अच्छे जा चुके हैं, आई डोंट हैव टू वरी, इफ इट्स टफ फॉर मी इट्स टफ फॉर ऑल। Everyone. It's tough for me. If it is tough for me, it is tough for everyone. Faith in your preparation, that is the most important point to remember, and that's why you have to prepare a lot to have faith. Do a lot. Yeah. Very good, beta. Very good. This answer will help each and every coming student a lot. Next question is हर सेक्शन के बारे में एक क्विक टिप रखेंगे। मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें? मैथ्स के लिए ओके, देयर आर प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, आरबीआई पीओ की होती है, मैंने करियर डिफाइनर की यूज की, बहुत अमेजिंग है वो प्लेलिस्ट को एक बार देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, जैसे परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन वो सब, एंड डीआई प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज प्रैक्टिस सॉल्विंग टॉपिक के क्वेश्चंस इज वेरी डिफरेंट देन सॉल्विंग डीआई के क्वेश्चंस। तो डीआई रोज करना। मैंने बीच में मेरे मैथ्स में 12 वगैरह आने लगे थे, तो मैंने मैथ्स करना छोड़ दिया, फिर मैंने 5 के ऊपर आ गए थे नंबर। एंड मैथ्स रोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैथ्स एक रिचुअल बना लो। मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा लाइक ये प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, तो आई यूज्ड टू wake up and do 2 sets of DI every day. So that was like a ritual for me कि उठने के बाद DI करना ही है। तो DI for maths, English. English के लिए you have to work on your vocab, and there is a skill, and this skill applies in CLAT to how to read the passages, how to identify what's the main point of the passage, and उसके लिए आपको YouTube पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आपको सिखाया जाएगा, एंड मानो सर भी सिखाएंगे कि पैसेज का, हम हिंदी में बोले तो पैसेज का सार क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पैसेज। एंड इसके लिए आई यूज्ड टू डू दिस एक्सरसाइज कि हिंदू में देयर आर एडिटोरियल्स इन द हिंदू, सो यू रीड एन एडिटोरियल, देन यू सबमिट अप इन योर माइंड, एंड देन उसके नीचे हर एक एडिटोरियल के टाइटल के नीचे समरी दी होती है। यू डोंट रीड दैट बिफोर गोइंग टू द full editorial, but then you read that summary and match it up with your own. If the summaries are matching, then you're good to go with. And then I used to have this traffic signal thing. I'll show you. I used to have this traffic signals for reading. So this is what I did, if you can see. Oh. I really like making colorful notes. Wow. So red means, so reading speed is not at all constant throughout the paper. You Very cannot good. be like पूरा speed में, no, that does not happen, right? ये सर ने भी बताया था. So whenever the author is talking about something important, or legal में कुछ important principle दिया है, slow down. That is your red. Whenever there are transition word like but, yet, however, आप थोड़ा speed कम कर लो. You are still in your speed, but वो yellow light है, आप थोड़ा speed कम कर लो, and थोड़ा speed बढ़ा लो. Sorry, I said it incorrectly. थोड़ा speed बढ़ा लो, but be aware of them, but yet, however, उसकी पूरी लिस्ट में मिल जाएगी, आप सबको पता है ये तो। एंड
ग्रीन इज की जब आप पूरा स्पीड से पढ़ सकते हो, लाइक देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन पैसेजेस में, खाली बहुत ज्यादा इन्फो दिया होता है, एग्जांपल्स, एंड इंग्लिश में रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। तो एग्जांपल्स जब ऑथर दे रहा हो या फिर उसने अपना मेन आइडिया स्टेट किया, ही स्टेट्स हिज मेन आइडिया एंड देन ही जस्ट एक्सपांड्स ऑन दैट आइडिया by giving examples, by substantiating his argument, so you can, I mean, skim through that part or हाँ, be बिल्कुल सही fast. बात, That बिल्कुल is सही the बात। skill that is very important for CLAT as a paper, because CLAT is a reading oriented test. It is very important. She just gave you a golden nugget. He just gave you. It is a very important skill. Because हम लोगों को याद है, हम लोग को कार रेस की जब वीडियो देखते थे तो हम यही समझते थे कि हर मोड़ पे जरूरी नहीं है कि तुम्हारी स्पीड फुल रहे। ऑन द टर्न यू हैव टू स्लो डाउन एंड ऑन द स्ट्रेट रोड यू हैव टू कीप एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज हाउ इट गोज ऑन। एंड ये जजमेंट आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, Practice, जितनी practice कर सकते हैं। कि ये कैसे कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। उसके लिए न्यूज़पेपर्स आर नॉट, आई डोंट गेट इट व्हाई पीपल से न्यूज़पेपर जीके के लिए करना है, मैंने बिल्कुल नहीं किया था। न्यूज़पेपर्स आर फॉर दैट प्रैक्टिस ओनली, स्पेशली द एडिटोरियल पेज। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। लीगल के लिए पीपल स्ट्रेस अ लॉट ऑन थियरी, आई डोंट। एक सर ऑल्सो डजंट। मैं सर को बहुत बार पूछती थी बीच बीच में कि मैं लीगल थियरी करूँ क्या फिर से। एक बार कर लो, एक बार अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, understand the legal jargon and get used to it. Getting used to the legal jargon is very important for legal. But I won't suggest you to go to live law and spend a big chunk of your time reading the articles. जो न्यूज़पेपर में legal oriented news आती है उससे काम हो जाता है, and mocks is your number one source material for legal. And एक बार थियरी करो हो जाता है। I don't think that you need to revise theory again and again. And I remember कि mocks के बाद कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का हमारे ग्रुप ने मिलकर एक टेस्ट बनाया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई समथिंग एज अ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, बिकॉज हमारा उसमें बहुत कंफ्यूजन होता था। तो हमने एक 3 prong टेस्ट बनाया था, उसके बारे में अभी नहीं, बट देयर आर थिंग्स लाइक दैट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन लीगल। एंड इवन लीगल इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट के लिए एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट आई यूज्ड टू फॉलो बेन स्ट्रेटेजी, ब्रॉड, एलियन, नैरो, एक्सट्रीम। तो हर बार यू कैन एलिमिनेट। एंड देन लीगल में भी बहुत सारे, लाइक देयर इज दिस वन प्रिंसिपल दैट आई नो पीपल नो बट दे फॉरगेट कि प्रिंसिपल बेस्ड आंसर चूज करो। बहुत बार दे टेंड टू कीप द fact oriented answer before the principle based answer, so you are like, okay, I found the right answer and then you move on. Don't do that, choose the principle based answer, and uske liye even though you're sure that you have found your best answer, still read all the options. क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एंड लीगल के लिए सेक्शनल टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मतलब आई ऑल्सो रिमेम्बर हम लोगों ने लीगल करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था। यस, आई ऑल्सो रिमेम्बर, सो इट हैज इट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि मुझे याद है स्टूडेंट ने मुझसे कही सर ये लीगल प्रिंसिपल समझ में नहीं आ रहे बहुत सारे, आप ये डेफिनेशन समझा दो सर, ये कौन कौन सी होंगी। मैंने कहा रुक जा, मैं पढ़ के आता हूँ फिर समझाता हूँ। मैं अगले दिन पढ़ के आया। I remember you had taken a class of legal doctrines. हाँ, and not a lot exactly. of people do that. And monoism and dualism पे आया था legal में passage, if I'm not wrong. हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आ गया पेपर में। Yeah. ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो द पॉइंट इज कि हो जाएगा, आपको बस हिम्मत रख के समझने की, एक बार आपको वहां पहुंचना होता है बस। Yes, yes, एक बार बस पहुंचना होता है। लीगल के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बहुत बोलते कि थियरी करो आपका हो जाएगा, बट थियरी से नहीं होता। थियरी से क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी क्या होता है, बट उधर पैसेज समझ के यू हैव टू आइसोलेट द प्रिंसिपल एंड देन अप्लाई टू द क्वेश्चन, जो आपको थियरी पढ़ के नहीं समझ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। सीआर के लिए आई डिड जीमैट बाइबल, पावर स्कोर जीमैट बाइबल, उसके मैंने नोट्स बनाए थे, एंड आई यूज्ड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ जीमैट मटेरियल, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड आई थिंक जीमैट मटेरियल के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते हैं। सो वॉट एवर यूर सॉल्विंग फॉर सीआर, मेक श्योर, इवन वॉट एवर यूर सॉल्विंग, मेक श्योर दैट द मटेरियल हैज गुड एक्सप्लेनेशंस। That is very important, because I see people solving random material from Telegram community में जो भी मिलता है. Do not do that. Solve quality material, because as sir used to say, no practice is better than bad practice. Exactly. Very good. And CR में first you have to cover the basics, assumption, conclusion, all the topics from the end. That GMAT Bible is like, I love that book. I adore it. So क्या बात है? That is Final. like mocks. GK. So Mega GK, and a lot of people from Mega GK also asked me how I used to revise my notes. So I had this apparatus or modus operandi for revising your notes. I used to attend all the classes. That was, I don't think that I missed classes a lot. Like, नहीं, बहुत कम मिस करी होंगी, शायद ही कभी। तभी तो मैं कहता था कि तुम लोगों को पूरी साल देख के पढ़ाया है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे दिल पे बहुत बोझ रहेगा।
और सबका सिलेक्शन हुआ? यस, तो आई यूज्ड टू वॉच द क्लासेस एंड देन जब पूरा महीना खत्म हो जाए मैं नोट्स लेती थी, उसमें आई गेस अराउंड 4-5 आवर्स लगते थे, बट मैं उसको पूरा पढ़ लेती थी एक ही बार में एंड देन नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू रीड देम अगेन। तो देन इट यूज्ड टू टेक लेसर टाइम। थर्ड डे आई यूज्ड टू रीड देम अगेन एंड देन वो मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता था एंड देन मैं कभी कभार जब आप क्लास में टेस्ट लेते थे उसमें रिवाइज करती थी या फिर थोड़ा मॉक्स के पहले। पर बहुत सुंदर बात है, ईच एंड एवरीवन आउट देयर, मेहनत लगती है दोस्त, मेहनत लगती है। शी जस्ट टोल्ड, एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, बैक टू बैक 3 दिन। मैं दोबारा कहूंगा टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर, मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, डिसिप्लिन लास्ट, डिसिप्लिन लास्ट, डिसिप्लिन इज द थिंग दैट लास्ट। एंड आपके अंदर मोटिवेशन होगा तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे, जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। इज इट सो जानवी? Yes, yes, yes. है ना? Because यू you cannot इज अ लाइव survive एग्जांपल on, ऑफ इट। you cannot survive on motivation. There are going to be many days in your life जब आप बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। आई रिमेम्बर मैं अपने दोस्त आयुष को हमेशा ऐसे टेक्स्ट करती थी दैट इज दिस मेरी लाइफ यही है, इट्स जस्ट ड्रजरी, माइंडलेस वर्क, जीके एंड आई हेट माय लाइफ राइट नाउ। एंड लाइक डोंट वरी, हो जाएगा। यही है, सबके साथ ही होता है, टफ फेज सबके साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से समझ लिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू से टू द क्लेट 2023 स्टूडेंट्स? Yeah. So firstly, as I said in the beginning of my interview, there are going to be many repeaters this year. I feel more than last year because अभी 6 months ही है, so the competition is going to increase. But the thing is that you need to identify your weaknesses. You cannot rely on anyone else's given schedules. Make your own schedule. And उसके ऊपर मानव sir has an amazing video, and I think that is the best video on YouTube on making schedules for any competitive exam. And you cannot go. And I'm a person who loves planning. I adore planning. मैं मेहुल के साथ देखा मैंने, चल प्लान बनाते हैं, and I was bad at executing it. So sir was like कि एक हफ्ते का बना. Don't plan on कि अच्छा मैं ये मंथ में ये करूँगा, ये मंथ में वो करूँगा. हफ्ते का बनाओ, टेक बेबी स्टेप्स, सर की लाइन है. तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ गलत जा रहे हो. आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, नोइंग योरसेल्फ वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रैकिंग दिस एग्जाम बिकॉज you are your worst enemy and you are your best friend. So firstly, know yourself well. What are your strengths, what are your weaknesses? Secondly, don't get disheartened by marks, okay, and give a lot of marks. That was like a mistake I did in my first year. I did not give a lot of marks, and सिर्फ marks देने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से एनालाइज करो. उसके ऊपर भी मानव सर ऐसा वीडियो है और वो सिखाएंगे. तो अच्छे से मॉक्स एनालाइज करो, सब क्वेश्चंस देखो, सब मतलब एंड में मैं नहीं करती थी बट शुरुआत में सब क्वेश्चंस देखो, अंडरस्टैंड कि अच्छा व्हाई डिड आई लीव दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड दिस क्वेश्चन. एंड थर्ड थिंग इज वर्क अ लॉट ऑन योर वीकनेसेस बिकॉज योर वीकनेसेस विल टेक यू टू ग्रेट लेंथ्स. Legal was my weakness, but I got 37.5 in legal. Oh, क्या बात. Consistently, it's okay to take breaks. You don't have to own yourself, own your life. Okay, मैंने break ले लिया. Don't feel guilty about it. Don't get trapped in the guilt cycle. Don't get trapped in the guilt cycle. And there are going to be bad days. Like there are going to be bad days. Yeah. For sure. And I basically promise on my from my point of view कि she will be there to help you out. Yeah. 2023 guys. I promise. Because I am getting a lot of DMs on Telegram as well, and I won't be able to reply to all. I'm clarifying it now. I'm saying sorry to all of them that I won't be able to reply to all of them because I mean I get that people are desperate and they are asking me how to crack CLAT, and it is a very vague question. It requires like a huge answer how to crack CLAT. How to be a good human being वाला question हो गया है तो. हाँ, exactly. 2 जन्म. हाँ तो. I'm gonna be there at Mega GK. I'm gonna be there like for you because. Again, I'm telling you, I know what it is like to feel like a failure. Even though those people who have not made this year, you guys are not failures at all. You have given it your shot. Failures are those people who don't even try. Failures are those people who think, oh, CLAT में इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, NLS में इतनी कम सीट्स है, मेरा कब होगा? मैं कैसे होगा? You at least give it a shot. Give it a shot. Now is the time to work on yourself. So this year, work on yourself, work on your weaknesses. मानव सर जो बोलते हैं सुनो, 1 hour 50 minutes में पेपर देने की प्रैक्टिस करो. करना पड़ेगा because many people told me not to do it. Okay, let me clarify it. Like
big mentors told me not to do it, but I had faith in Manav sir, and I think 1 hour 50-minute paper thing was one of the biggest contributors to my success. मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम पेपर से निकली एंड यू कॉल्ड मी, सर मैंने टेबल पे मौका मारा पेपर खत्म करने के बाद, खुशी के मारे मैंने मौका मार दिया। और मुझे यू सेड कि सर वो 1 घंटा 50 मिनट काम कर गया सर, 1 घंटा 50 मिनट काम कर गया। I was very happy after writing the paper, and even I don't really care about the result, but you get the feeling कि आपका पेपर अच्छा गया है। हाँ, and बहुत। वो मेरे कुछ marks में हुआ था, like yes I did my well, and उसके बाद मैंने सिर्फ I banged my hand on the desk and I was like yes I did it. And Very everyone good, was looking at Janvi. me. You owe this, beta. You owe this happiness. Any tips for the first time goer for 2023? जो लोग Yeah, पहली the बार first पेपर देंगे। Listen to what the improvers are saying. Listen to them. They have Very the good. experience and don't feel। अब मुझे भी लगता था कि ओह इतने सारे ड्रॉपर्स है, इतने सारे इम्प्रूवर्स है, इतने सारे इम्प्रूवर्स है, मेरा कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। तुमको बस एक सीट चाहिए। एक सीट चाहिए यार। Everything will go fine. Just listen to what your mentor is saying and choose the material wisely. Don't go on solving like कुछ भी किसी भी coaching का material. I haven't really solved any coaching का material other than mocks in my prep. So that क्या is बात also है, a thing. क्या बात है, क्या I बात है। really like solving LSAT and GMAT material because वो बहुत अच्छे quality का होता था। But बाकी if the explanations are not good, don't waste your time in solving them. And a lot of practice as well as theory, as well as completing there is no syllabus for CLAT as such, but just doing the basics, listening to your mentors, doing GK and math every day. Every day, eat the frog every day. Yeah. If you need to Because do, these are the sections in which, unless and until you're very good at math, you require practice. Math gets better with practice. for sure. Any tip for those who are going to do it again, who are the improver student? Yeah. So my journey was that. It is gonna be a tough journey. Don't think that आपने पहले दे दिया है तो अब बहुत स्मूथली जाएगा। मेरे को 40s में आ रहे थे बीच में, अगस्त एंड सितंबर में। तो the thing that you have to keep in mind, और बहुत डर भी लगता था। You have this fear, right? Because you are leaving everything for one exam, and that exam is also of a very, I don't know, the exam is also very capricious. हाँ, It is dicey and you don't know आपका कैसे जाएगा। So you have my example, my rank was 1211, this year it's all India rank 8, and actually मुझे भी श्वेता रामचंद्रन उसका रैंक कुछ 1200 में ही था in CLAT 2020, and in CLAT 2021 she got an all India rank 4, and watching her interview made me take the leap of faith. क्या बात है। And many students will take the leap of faith watching your interview after that. Yes, so again I say write down your mistakes on a piece of paper, stick that in front of your wall, read that every single day. Do not make those mistakes. मैंने कुछ किए थे, मैंने एक लिखा था time pass a lot of it, but मैंने still time pass किया because you are not a machine at the end of the day. You cannot keep working all the time. So make good friends. Okay, friends are very important, but you don't feel bad that you are not able to make friends. वो भी होता है कुछ लोगों का, ग्रुप से इतना कुछ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah. Be अपने साथ सहज रहो। Yeah, अपने साथ सहज be in रहो। harmony with yourself. Be in harmony with yourself. This So is it's the gonna- basically by far the thing I always try to teach each and every Yeah, student. yes. Be in harmony with yourself. Be in harmony with yourself, because that is very important, and you will have this fear at the back of your mind. मुझे भी था, especially after what had happened to my eye. I was like, I had given it my entire year, and a year is not a small portion. Energy of a year, motivation, Energy of each and a year. everything you gave, beta. Everything, right? And easily you feel that fear, but remember why you're doing this. You're doing this to do justice to yourself. And right now I feel that I've done justice to myself, because मेरे साथ भी वो invigilator वाला हुआ था, but I had some weaknesses in me. I was not that capable enough, and I'm very happy that right now I have improved upon my mistakes, and I'm capable. क्या बात है, क्या Because बात। at the end of the day, drop, you're not just doing it for NLS or NILSAR, you're doing it to do justice for yourself. Justice to For yourself. yourself. Not your parents, not your teacher, not your friends, but to yourself. Also another thing, you will feel bored in your preparation, because unlike the students who have boards, which is also very tough for freshers, managing with boards is very tough, but you will feel that you're studying the same thing every single day, and it will feel like drudgery and बहुत बुरा लगेगा. But remember, you chose it yourself. So nobody forced you to choose this.
So you're doing it to yourself. I used to remind that, okay, I wanted this, right? And think at least you're getting a chance to work hard for what you want. क्या Nobody बात, is telling you to go and write JEE. मैंने खुद नीट का फाउंडेशन किया था, and then I felt like this was not my thing. So nobody is forced. I used to tell myself that कितना बुरा होता अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे नीट के लिए फोर्स किया होता, बिकॉज फ्लैट में एटलीस्ट मेरे लाइकिंग के कुछ तो सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तुम्हें तुम्हारे हिस्से की जंग मिल रही है. Yeah, exactly. Be happy that you're getting to fight a war that you chose yourself. Chose to fight. That is Yeah, you chose to fight it. So remember that, and remembering this is gonna be the most important thing in your life for the next 6 months. कि अभी दिसंबर में है, which is an advantage according to me. So this is such an inspirational answer. This is such an inspirational answer. एक last question हमारा, एक last question for the day. Any 3 points that you recommend the students out there to choose Mega GK? Yes. Firstly, personal attention. As you guys have seen, I got that attention, and everyone in the class got it. You just have to text sir, and he'll pick up your call. He's there for you every time. That is there. Another thing, I hated making GK notes. I was really bad at making GK notes myself. I hate writing on pen and paper. मुझे बहुत बुरा लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. And for GK, you have so much material out there, right? You have so many things to do. There are so many compendiums, and आपको हमेशा FOMO लगता है. But with Mega GK, sir does all that work for you. And even in the notes, it's not that कि बहुत बड़े notes होते हैं. Sir even highlights, and sir has this thing that red means very important, green, black, highlighted, everything. And sir will make you remember those things. And Forest Survey Report, Top 26, हमने class में इतना पढ़ लिया था. And that helps a lot. And also about Mega GK, a lot of people will think that why do I need classes for GK? Even I used to think that. I was like, I'm just going there for the notes because I really like how he made his notes. So don't do that. Attending classes is very important because it imprints the info on your mind. And sir will crack jokes in the class. It will lighten up your mood. And वो jokes के साथ आपको याद हो जाता है. I remember वो Digital Sky वाला सर ने पूछा था, is it a website or is it an app? And सर के questions बहुत से घुमा फिरा के होते थे टेस्ट में. So it was very nice. And हाँ, मुझे याद आ गया बिल्कुल सही. सर के रिविजन टेस्ट जो स्पीक्स होते थे, दैट वर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. आई वाज लाइक, ओके, आई हैव टू डू वेल इन द नेक्स्ट स्पीक्स टेस्ट, आई हैव टू डू वेल इन द नेक्स्ट टेस्ट. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक, सर मेरा अब तक पढ़ के नहीं हुआ ठीक से, मेरा पढ़ के होने के बाद टेस्ट ले लो. हमेशा. और मैं कहता था मैं तेरे को बिना पढ़े टेस्ट लूंगा, एंड शी गिव द टेस्ट बिना पढ़े, और वो तब भी अच्छा ही होता था. क्योंकि उसको सी दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट. कि जो भी लोग कहते हैं ना कि डर नहीं लगना चाहिए, ये गलत कहते हैं. डर लगना चाहिए. डर बहुत अच्छा होता है अनटिल एंड अनलेस वो आपको क्रिपल नहीं कर रहा है. Sure. फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है. Exactly. डर लगना चाहिए. Fear is very important. Fear is very important. And the thing is that in Mega GK, you also don't really have to worry about the revision. Because even in the last, in January, we did a 15 days revision of August, September, October, November, December. And in June, we did a revision of all the months. all the months. And I remember तुम लोग मई में परेशान हो रहे थे, and then I told you कि देखो मैं ऐसे रिवीजन करा दूंगा. तुम कैसे रहा, अभी मन को शांति है सर, आप करा दोगे पक्का. मैंने कि मैं करा दूंगा. I did not get a chance to do that. And मैंने बस सर के नोट्स ही पढ़े, उसमें से बहुत सारे उसमें से कवर हो गए थे. But I'm glad that I did not waste my time on that because I think कि उसकी वजह से मेरे माइंड में और बर्डन आ जाता. And सर के नोट्स में से मेरा हो गया 790 pages. And they say Urja that I do not fear the 1000 move you have practiced one time. I fear one move that you have practiced thousands of times. Yeah, exactly. This is the beauty. And for those who are asking, I did not make my own GK notes. I usually sometimes सर भी बोलते थे कि पेन लेके बैठो, and I used to write the information that I don't remember or Only type it हाँ in my phone. highlighted information लिखनी होती है. Or only in my phone sometimes. But other than that, I did not like the part of job of making notes. I hate that part. Go just read. We are doing it for you. We are doing it for you. You go just read, and because I like making notes. So I do what I like. You do what you like. I like teaching to the students. I do what I like. You do what you like. This is harmony. So So, another Janvi, thing, and sir will give you life lesson that people are charging you thousands of rupees for. Like वो YouTube पे आ जाते नहीं, ये कोर्स वो कोर्स, टाइम मैनेजमेंट कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, सर वो सब करा देंगे. And Mega GK is much more than just GK. Sir will give attention to each and every subject of yours. And even see the role of mentor in your prep is very important.
एंड मेंटोर्स आर नॉट दोज मेंटोर्स जिसको आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एंड देन दे विल कॉल यू आफ्टर 3-4 days एंड देन आपको उससे उनसे बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है. Sir was constantly there for us. And see, there are many mentorship programs out there. अभी बहुत निकले हैं. But the thing is that those mentors don't know you. Sir knows you. Sir will get to know you if you give him. And that's why I also recommend turning your video on while the class is going on. इसीलिए मैं कहता था भाई मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा तो तुम्हें पहचानूंगा कैसे. Because I used to panic a lot during the test, and sir ने मुझे काम रहना सिखाया टेस्ट में. And sir will give sir a chance to know you, and you will not regret it. Thank you very much, Janvi. GK is way beyond just GK or just CLAT. It is an emotion, and I owe my success to sir, and I give him full credit of my success, full credit. And I really want Mega GK to be very popular in the next few years. And I really want sir to like have this. It will be the unicorn of heart. Unicorn of heart. It will be a unicorn of heart, and It I will be really the want unicorn sir to fulfill his dream of making that positive, healthy community. Yeah, we will for sure And do it. Mega GK community, I've made the closest friends in Mega GK community, and we never competed with each other. We were competing with each other, but it was healthy always competition. Healthy competition. It was not negative, because I tend to see this in the groups a lot, that people attach their ego to their ranks and scores, and people are like boasting about their scores and everything. Mega GK is a very positive community, and I remember the people I did not even speak with, like Amukta. She texted me a week before class telling me that I'm her hero and I'm an inspiration for her. I was like, Amukta got 200 rank. Yeah, She is getting the college she wants. Nalsar, she is getting the college. Congratulations So to her. this is the beauty. This is the beauty that in this era of cutthroat competition, in this era of always getting fearful and always getting skeptical about the people, what is important, that trust should be there. Trust and Mega GK was a safe haven for me. I used to turn on my camera. I used to laugh like a dog. मैं हंसते ऐसे हो जाती थी बीच में से. I used to laugh. I used to tell my problems to sir. मैं मॉक खराब जाने के बाद ऐसे मुंह बुला के आती थी, सर मेरा मॉक अच्छा रह गया. And I did not feel that I will be judged here. You will not be. No one will be judged here. Yeah, because that is Mega GK was my safe space. Everyone Thank was you. loving. Sir, ma'am, and Puri King Mano team, they have helped me so much in my journey. So Thank much. you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for making my decision of leaving a job, government job, and coming to become a teacher successful. Thank you so Thank much. you so much, sir. This interview is so special to me because it was always my dream to have my first interview with Mano sir, and I really love Mega GK. Thank you so much. And we all love you. And अपने को अभी बहुत अच्छा काम करना है आगे. Yes, sir. Yes. ये तो बस शुरुआत है ना, अभी ये तो तो बहुत शुरुआत अच्छा काम करना है. Yes. So thank you very much, Janvi. Thank you very much, Janvi. Thank you very much, Janvi, for this interview. Thank you very much for having trust in us. Thank you very much for being such a lively student. Thank you very much for always hopping. और जिसको लगता था कि क्लास के अंदर हमेशा इमोशंस को सामने डिपिक्ट करने वाली स्टूडेंट की, अगर मैं दुखी हूं तो हाँ मैं दुखी हूं, अगर मैं खुश हूं तो हाँ मैं खुश हूं, मैं जैसी हूं वैसी हूं. और ये नेचर हमेशा बनाए रखना बेटा, हमेशा जॉली रहना. बी वॉट यू आर, बिकॉज दिस इज वॉट यू आर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर सेल्फ. This is the beauty of yourself. Thank you so much, sir. Like, you have made my life so wonderful. Thank you so much. Wonderful. Like, you made this year worth it. You and the entire Mega GK community made this year worth it. And Thank you. I thank you all from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you so much, everyone who played a part in my prep. My friends, Mehul, Uja, Anushka, and everyone from Mega GK community. Thank you all. क्या बोलते हैं हम लोग जानवी, ना तो हम दम से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है हम ही से निकलेगा. हम ही से निकलेगा. दोबारा से नमस्कार दोस्तों. कल हम लोगों ने जानवी जोशी के साथ में चर्चा की थी, और उस सेशन के बाद में हम लोगों को समझ में आया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इस सेशन का रह गया है, और वो है जानवी के भाई, जो आपको अभी वीडियो में दिख रहे हैं. जानवी उनको इंट्रोड्यूस करेंगी, पूरी बात समझाएंगी. ये पर्टिकुलर पार्ट इस वीडियो का और इस इंटरव्यू का बनाने की जरूरत हमको क्या थी, उसके पीछे एक रीजन है कि आप अपनी बहन को, आप अपने सिबलिंग्स को, खास करके फीमेल सिबलिंग्स को, लड़कियों को केवल परमिट मत करिए कुछ करने के लिए, प्रमोट करिए. दोनों चीज़ों में फ़र्क है दोस्तों, दोनों चीज़ों में फ़र्क है.
केवल परमिट जब आप करते हैं तो दैट इज वेरी ओल्ड स्कूल, है ना. परमिट इज वेरी आउट कल्चर, अब नहीं रह गया. आप उनको प्रमोट करें, हेल्प करें, सो दैट वो जो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से बन सकती हैं वो बन के दिखाएं. आप समझ रहे हैं ना, वो बन के दिखाएं. एंड दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म. दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ सपोर्टिंग द फीमेल टू बी व्हाट दे वांट टू बी. क्लियर है? तो जानवी, हेयर यू गो. बताएं आपके बगल में आपके भाई के बारे में, आपके भाई का नाम और सब कुछ. Hello everyone. So this is my brother Prathamesh Doshi. He's 2 years elder than me and he's doing mechanical engineering. अभी लास्ट ईयर में है and इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है. इसने मेरी मैथ्स की पूरी तैयारी करके ली थी. थैंक यू मेरे डाउट्स लेता था. एंड अनदर थिंग जो मैं कल बोलना भूल गई थी अपने इंटरव्यू में, कि मेरे साथ एक्चुअल क्लैट 2021 में जो इन्विजिलेटर का पंगा हुआ था वो ना हो, इसलिए मैं जब भी मॉक देती थी ये हल्ला बनाता था और ये मेरी साइन लेने आता था और ये मुझे डिस्टर्ब करता था कि अभी 5 मिनट बचे, चल ओए मार दो. और उसने मुझे वो पूरा एनवायरनमेंट को यूज टू करने के लिए इतनी मेहनत की, स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू राइट मॉक्स. तो बिग थैंक यू टू हिम. इसने इतना सपोर्ट किया है मुझे. प्रतिमेश, from my point of view, big thank you to you and now up to you. Yes sir. So मेरा रोल यही था कि इसको मैं हिम्मत देते रहूं बार बार, क्योंकि मुझे लगता था कि क्लैट के बाद ऐसा ना लगे कि यार शिट्स ये रह गया, ये करती तो ये और हो सकता था. तो मैं उसको ही बोलता था कि तेरा बैटल है ना, तू हार चाहिए तो हार जा, लेकिन ऐसा हार ना कि जीत के हार जाए. तो प्राउड कि यार तू यार खेल के हार गई आज. क्योंकि वो एक लाइफ लेसन है कि हर एक मतलब सिबलिंग्स हो या पेरेंट्स हो, उनको मेरा कहना यही है कि आप अपने मतलब जो बेटे घर के अभी आगे जा रहे हैं उनको प्रोत्साहन दीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए. तो फिर क्योंकि अगर एक बार हिम्मत उनमें आ गया लड़ने का तो आगे कुछ भी हो बहुत इजी है. क्योंकि कुछ भी, उसको मैं वही बोलता हूँ, कुछ भी हार जिंदगी में कुछ भी, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना. बहुत सुंदर प्रतिमेश, बहुत स्टेटमेंट है कि स्टे ऑन द पिच, रन्स विल कम ऑटोमेटिकली. फॉर श्योर. एग्जैक्ट खास मुंबई वाला इस वो मैसेज, स्टे ऑन द पिच, रन्स विल कम ऑटोमेटिकली. बिल्कुल सही बात है. एंड टू एवरीवन आउट देयर, दिस इज माय मैसेज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन. डोंट जस्ट परमिट योर सिबलिंग्स, योर सिस्टर, प्रमोट हर, help her, do whatever it takes to help her so that she can be her true potential. She can gain her true potential. अपना बहुत ध्यान रखें आप दोनों. बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. हमारे ऑर्गेनाइजेशन की किसी की भी हम लोगों की कभी जरूरत हो प्रतिमेश, वी ओ यू, है ना, वी ओ यू. एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you sir. Thank you so much for having Thank us you again. for giving me this opportunity. Thank you so much. नमस्कार. जय हिंद. Jai Hind sir.